it is well known that we have a dubious distinction to have the probably highest number of type 2 diabetes individuals in the world till few weeks back, but currently the maximum number of patients of diabetes worldwide is in the China, and the rate of rise of patients with type 2 diabetes is at exponential rate in the country as compared to many other countries. And by virtue of our population, and we are genetically predisposed for the diabetes, and because of these two reasons, genetical predisposition as well as because of environmental factors, the prevalence of diabetes is progressively rising. Unfortunately, the part of the country where we reside, Chandigarh and Punjab, is the highest prevalence of diabetes in the country. So somebody says that China is the world capital of diabetes. In that case, Chandigarh is the capital of diabetes of India, because the prevalence of diabetes in Chandigarh is very high. That is approximately 14.6% from a ICMR INDIAB study that was conducted 5 years back. We have recently conducted a study in our Chandigarh that was involved 4 sectors of the Chandigarh, and after exclusion of patients those are having non-diabetic, we found 2%, 3% extra diabetes individuals, as well as approximately 15% of patients has pre-diabetes, meaning by that the hyperglycemia load in Chandigarh is nearing around 30%, which is really very, very high. And these 15% of pre-diabetes individuals are going to convert in the diabetes by every 5 years around 5 to 10%. So they are going to develop more number of diabetes individuals over a period of time. So the prevalence is very high, and obviously we have to do drastically to reduce the prevalence, to control the diabetes. So I think major reason 2-3 things are maybe important. One is that increasing awareness. The Chandigarh population is one of the literate city of the country, and maybe second highest per capita income in the country. So the diabetes is directly proportional to wealthiness. Of course, the people are more wealthy, they have more big abdomen, and that is directly proportional to the diabetes. So that is one reason. And of course the increased awareness, so people are getting their tests done more frequently, so that is another reason. And maybe gradually changing lifestyle, we are say more towards the westernization world, going late night parties, eating heavy food, drinking is very common. You know that maybe the ambulance will take some time to reach to your house, but pizza can reach in 30 minutes, and they give all very interesting offers. If you will not deliver pizza in 30 minutes, it will be free, and lot of people are taking that advantage, and that is a very concentrated food. That is one of the reason. And unfortunately Chandigarh, the parks are lot, but often people are not going there, so we can encourage people to reach to the park, do physical activity, that can be helpful. And I say there is a term called insulin resistance. If I say insulin resistance is the mother, then hypertension and diabetes are the brother and basically daughter and son of the insulin resistance. So they both go hand in hand. Sometime the hypertension comes first, followed by diabetes, or in some cases diabetes comes first, then followed by hypertension. But इन दोनों का जुगलबंदी है, दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि they both are the product of the one mother, that is the insulin resistance and obesity. I think it's very, very interesting question, and I'll take you back a few years back. When I was a school student, diabetes was considered as a राज रोग, राजा महाराजाओं की बीमारी मानते थे. वो राज रोग आज एक आम रोग हो गया, हर एक आदमी को डायबिटीज़ हो रहा है, और प्रेवलेंस इज़ वेरी हाई. अगर आप 30 साल पहले जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्कूल जाने के लिए अक्सर पैदल जाते थे लोग बाग, या स्कूल जाने के लिए साइकिल पे चले जाते थे.
लेकिन कोई बस नहीं होती थी ज़्यादातर जगहों पे, तो पैदल चलते थे। फिज़िकल एक्टिविटी का एक बड़ा रोल होता था। ना कोई स्विगी होता था, ना कोई पिज़्ज़ा होता था, ना कोई बर्गर होता था, सब घर का खाना खाते थे। और जो घर पे खाना बनता था उसमें घर के परिवार के लोगों को भी मेहनत करना पड़ता था। तो एक तरह से एक फ़िज़िकल एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा रोल था। जाने अनजाने में या ज़रूरत के हिसाब से वो फ़िज़िकल एक्टिविटी होती थी। पर अगर हम आप देखें तो वो सारी चीज़ें बंद हो गई। अब कपड़े धोने के लिए मशीन है, खाना बनाने के लिए सारी फैसिलिटीज़ है, एसी ऑन करने के लिए रिमोट है, टीवी ऑन करने के लिए रिमोट है, और खाने की सुविधा आपको 12 घंटे 24 घंटे जब आप फ़ोन करोगे तुरंत आपको मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से हमारा फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया और सेम टाइम हमारा स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। आप देखेंगे तो हर कोई परेशान है, किसी के पास टाइम नहीं है। सो ये सारी चीज़ें मिल कर के फिज़िकल एक्टिविटी का नहीं होना, खाने का 24 घंटे उपलब्ध होना और स्ट्रेस, ये 3 मेजर फैक्टर है। अगर आप इन 3 मेजर फैक्टर्स को आप अगर टारगेट कर सकते हैं तो आई थिंक हम लोग फिर से डायबिटीज़ का प्रेवलेंस और डायबिटीज़ का बर्डन कम कर सकते हैं। क्योंकि जो इंडियंस पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ के लिए जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है। तो हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है कि हमको डायबिटीज़ होना का संभावना ज़्यादा है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। बट जब जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन के साथ साथ ये एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी साथ में आ गए तो उसके बाद डायबिटीज़ का प्रेवलेंस अचानक बढ़ गया और स्पीड से बढ़ता जा रहा है। तो हम ये 3 चीज़ों को टारगेट करना चाहिए। हम छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं कि आप ऑफिस के अंदर कार एकदम ऑफिस के बाहर पार्क नहीं करेंगे, आप थोड़ा दूर पार्क कर सकते हैं, वहाँ से पैदल चल सकते हैं। अक्सर हमने देखा कि हम लिफ्ट का इंतज़ार करते हैं, 2 मिनट 5 मिनट लिफ्ट के बाहर खड़े होते हैं कि लिफ्ट आ जाती तो मैं चल जाता हूँ। तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं, घर से थोड़ा 5 मिनट पहले निकल के आप लिफ्ट का इंतज़ार करें। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने देखा कि लोगों को इवन कोविड टाइम में भी लोगों ने 10-10 हज़ार स्टेप्स घर में करते थे। तो पॉसिबल है अगर हम प्रण लें, अगर हम डिसाइड करें कि नहीं हम फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो ये सब संभव है। और जो ये सब कुछ करेगा वो एक सच्चा देशभक्त भी होगा, क्योंकि देशभक्ति के लिए हर कोई आदमी जाकर के बॉर्डर पे लड़ नहीं सकता है। तो जहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छा काम करें तो वो भी एक देशभक्ति है। और डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी है जिसकी जो दवाइयाँ आती है, फॉर्चुनेटली काफ़ी दवाइयाँ हिंदुस्तान में बनती है, बट कुछ दवाइयाँ ऐसी भी है जो बाहर से ख़रीदी जाती है, बाहर से बन के आती है, उसका अभी भी पेटेंट ख़त्म नहीं हुआ है और उसके चक्कर में हम बहुत सारा पैसा फॉरेन करेंसी चली जाती है। तो अगर आप अपने आप को डायबिटीज़ से प्रिवेंट करते हैं, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करते हैं, तो ये सारी दवाइयों का खर्चा कम हो जाता है और तो एक अच्छा देशभक्ति होगा अगर आप अपना आप को डायबिटीज़ मुक्त रखेंगे, ब्लड प्रेशर मुक्त रखेंगे। और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दोनों बीमारियों की वजह से डॉक्टर रेड्डी के पास सारे पेशेंट चले जाते हैं और हमें दुख है कि वो पेशेंट फिर हमारे पास नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि हार्ट बीमारी हो गई तो अभी बोलते हैं डॉक्टर रेड्डी को दिखा रहे हैं, साहब वही मैनेज कर रहे हैं। तो आप समझ गए मेरे कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ जिसको है, हाइपरटेंशन जिसको है, उनको हार्ट का बीमारी बहुत कॉमन होता है, कैंसर का बीमारी भी कॉमन होता है। और ये सब काम के लिए डॉक्टर सोनू गोयल का डिपार्टमेंट बनाया गया है और ये इसके अंदर अपना पूरा भूमिका निभा सकते हैं और निभा भी रहे हैं कि आज हम सब लोग इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं और इस चीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं। सर पहले एक बार कर लें डिस्कशन, उसका कर लेते हैं, कोई बात नहीं तो कर लेते हैं। Thank you, sir. Thank you so much. Now my questions to Dr. Reddy. Sir, could you please give a brief description of hypertensive or CVD population in India as compared to global prevalence? हाँ, जो इंडिया में करंटली हाइपरटेंशन का प्रिवेलेंस है मोस्टली इसके अंदर होते हैं, वेदर इट इज़ सेल्फ रिपोर्टेड मतलब पेशेंट अपना पे इसका बीपी किसी से चेक करवा के डॉक्टर के पास आके रिपोर्टिंग करते हैं, या स्टडीज़ में जाके हम या किसी फिजिशियन जाके स्टडीज़ करके रिपोर्टिंग करते हैं। सो एवरेज इंसिडेंट्स ऑफ करंट पे है 25 to 30% है जो करंट सेल्फ रिपोर्टेड इंसिडेंट। बट ओवरऑल इफ फिजिशियन जाके अपना जाके सर्वे करेगा तो इट रेंजेस टू 60%। सो ओवरऑल इसका मतलब 4 out of 10 इंडिविजुअल्स इन इंडिया आर हाइपरटेंसिव। सो अगेन ये ना एज के ऊपर डिपेंड होता है, 18 और एबो आज एज बढ़ते जाते हैं वो हाइपरटेंशन का
प्रिवेलेंस भी बढ़ते जाएगा. सो ऑन एन एवरेज इफ यू टेक 45 करके मान लो, सो एट द एज ऑफ 45 देर आर 45% चांसेस आपका हाइपरटेंशन हो जाए. जो ऐसे 65 इंक्रीज कर तो आपका एज के हिसाब से वो प्रिवेलेंस से वो बढ़ते जाएगा. सो करेंटली चंडीगढ़ में सेल्फ रिपोर्टेड जो प्रिवेलेंस है 37.9% है एंड पंजाब में 42% है सेल्फ रिपोर्टेड. बट जो स्टडीज़ बाहर जाके कम्युनिटी में जाके करेगा तो दैट विल बी फॉर चंडीगढ़ इट इज़ 5 पॉइंट्स हायर एंड पंजाब इट इज़ 10 पॉइंट्स हायर. ठीक है. सो आप मैडम ये पूछेगा पंजाब में प्रिवेलेंस क्यों ज़्यादा है. इट इज़ नॉट पंजाब में प्रिवेलेंस ज़्यादा का नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस इन द कंट्री एंड जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कंट्री पूरा इंडिया में. सो प्रिवेलेंस है ना हर जगह पे अलग अलग हो जाते हैं इसका. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू पंजाब, इट इज़ थ्रू आउट द कंट्री ऐसे काफ़ी डिस्पैरिटीज़ हो जाते हैं. स्पेशली आप देखे जाएगा तो जो स्टेट्स है जिसके अंदर ज़्यादा अर्बनाइजेशन है इसमें हो रहा है उसमें हाइपरटेंशन डिटेक्शन भी ज़्यादा होते हैं, ये भी ज़्यादा होता है. सेम चीज़ आप देखेगा तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में आपको डिटेक्शन भी कम हो जाता है. इनफैक्ट ओवरऑल देखिएगा तो वेस्ट बंगाल में इंसिडेंट्स हमेशा कम ही दिखाते हैं 19%. बट एक्चुअली कम ही है या उधर जाके डिटेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है ये नहीं पता है. सो ओवरऑल बिकॉज ऑफ द हायर रेट ऑफ डिटेक्शन रेट इन चंडीगढ़ एंड सम प्रॉस्परस स्टेट्स इन द कंट्री आपको ज़्यादा प्रिवेलेंस दिखे जाएगा. एंड बिकॉज पर्सन के साथ और बड़े इंपॉर्टेंट डे पे मिले हैं. जो वर्ल्ड डायबिटिक डे है वो कल हम मनाने जा रहे हैं. और जैसे कि अभी डॉक्टर संजय ने बताया, डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ ये सब आपस में बहुत मिले हैं. बड़े कम केसेस ऐसे होते हैं जिनको एक बीमारी हो दूसरी बीमारी ना हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. अब मैं आपको अगर बताऊं कि जैसे बताया गया 7.5 करोड़ के करीब हमारी जनता जो है इंडिया की वो डायबिटीज़ से पीड़ित है. और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसमें से 50% लोगों को पता नहीं है कि उसको डायबिटीज़ है. तो हमें आधे लोगों को 47% लोगों को जो यही नहीं पता कि हमें डायबिटीज़ है. तो ये सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ें हैं. बिकॉज पता है तो हम दवाई ले रहे हैं, हम उसका इलाज करा रहे हैं, पर जिनको पता ही नहीं है उसके जो शरीर पर जो असर हो रहा है वो तो हो रहा है पर हम उसकी दवाई ले रहे हैं. सबसे पहली बात ये. तो हमें अवेयरनेस करनी पड़ेगी लोगों को. दूसरा, जैसे कि ये बताया गया अभी कि दोनों आपस में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत साथ साथ चलते हैं. तो हम ये भी बोलना चाहेंगे कि एक बाई डायरेक्शनल स्क्रीनिंग जो है, जैसे जो डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं उनका हाइपरटेंशन भी हो एक प्रोग्राम के अंदर, और हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनको डायबिटिक क्लिनिक के अंदर भी आए, जिससे कि उसकी जो डिटेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो. और जैसा बताया गया कि ये तो जो पॉपुलेशन मैंने बताई ये जनरल पॉपुलेशन 15 साल से ऊपर के. जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया, जैसे जैसे एज बढ़ती है डायबिटीज की प्रेवलेंस वो हाई होती है. और ये भी माना गया है कि जो अभी 7.5 करोड़ हैं वो 15 करोड़ हो जाएंगे 2045 तक हमारे कंट्री के अंदर, WHO की जो रिपोर्ट है. तो कहने का मतलब ये है कि इंक्रीज ही करेगी अभी हमारी. और हो सकता है कुछ समय बाद, ये डॉक्टर संजय बताएंगे, कि ये भी प्रिडिक्शन है कि जो चाइना अभी आगे चल रहा है हमारे से, वो चाइना को भी हम पिछाड़ देंगे अगर हम इसी तरीके से डायबिटिक के ऊपर काम अगर हम स्ट्रेंथन नहीं करते हैं. अब इसके लिए हमने जो पंजाब के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है 2 साल से, जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग हाइपरटेंसिव, उसके अंदर हम हाइपरटेंशन को स्ट्रॉन्ग, हाइपरटेंशन सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं. तो जब तक हाइपरटेंशन सर्विसेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जब तक हम ये सारे रिस्क फैक्टर जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और बाकी कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर, जिसमें कि अभी जैसे बताया पिज़्ज़ा, बर्गर, हम ये बोलते हैं HFSS फूड, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट फूड. जो हम जंक फूड बोलते थे उसका नाम जो नॉर्मली हमारी भाषा में बोलते हैं HFSS फूड. तो ये सारे जो फूड हैं ये सारे HFSS फूड्स हैं. और इसके अंदर हमारे को जो एनर्जी है वो कम मिलती है, एम्प्टी कैलोरीज काफ़ी होती हैं, और साथ में फैट ज़्यादा होता है, किसी में नमक ज़्यादा होता है. जो केन्ड फूड्स हैं उसके अंदर नमक बहुत क्वांटिटी का होता है, हमें पता नहीं चलता, शुगर बहुत ज़्यादा होती है. तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे. और आजकल जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर अभी देखा गया कैंटीन्स, स्कूल की कैंटीन्स हैं
वो हमारी उसके अंदर भी हमारे इस तरह के फूड काफ़ी मिल रहे हैं। पर अब जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर हेल्थ प्रमोशन कैंटीन्स भी बन रही हैं। तो हमारा पर्पज़ यही है, 2 साल से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पंजाब सरकार को हम ये अवगत कराते रहें कि किस तरीके से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और सारे रिस्क फैक्टर्स को हम साथ लेके चल सकें, जिससे कि पंजाब के अंदर जो सिटी जैसे चंडीगढ़ है, पंजाब है, जहाँ सिटी ऑफ और स्टेट ऑफ हाइपरटेंशन डायबिटीज़ कहते हैं, तो वो हम उसको कम कर सकें। देखिए, साइलेंट किलर का मतलब क्यों है, आपने देखा होगा हम इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर हमने साइलेंट किलर, ये ज़्यादा शोर नहीं मचाता मारने से पहले। जो लोग होते हैं वो पता नहीं चलता मर कैसे गए। आपने पिछले ज़माने सुना होगा, बोलते हैं इनकी डेथ हो गई जी, बिल्कुल हट्टे कट्टे थे। तो क्या रीज़न हो सकता है ऐसे हट्टे कट्टे लोगों की डेथ हो गई? तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, डिटेक्ट नहीं हुआ हाइपरटेंशन, तो वो या डायबिटीज़ हो सकती है, डिटेक्ट नहीं हुई। तो ये 2 साइलेंट किलर हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं हमारी आबादी में। देखिए, ये सारी बातें जो हैं डॉक्टर संजय ने और डॉक्टर श्रीनिवास ने बता दी हैं। थोड़ा सा ऐड करूंगा इसके अंदर। हमने बात करी कि फिज़िकल एक्टिविटी की, जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और लिफ्ट हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरी है। सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, लिफ्ट का इस्तेमाल बहुत ही कम करें। दूसरी, अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी हम बोलते हैं कि ऑफिस में रहते हैं तो हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो मैं क्या करता हूँ, एक अलार्म हम लगा लेते हैं, मतलब आधे घंटे का। तो कुछ भी चीज़ चल रही है थोड़ा सा हम वॉक करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा याद रहता है हमारे को। फ्लूइड इनटेक हम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लें, उससे हमारी ये है कि सेटाइटी, भूख वगैरह ज़्यादा नहीं लगेगी। और सेंट्रल ओबेसिटी जो बात करते हैं, BMI, बॉडी मास इंडेक्स जो है, वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का और इवन हाइपरटेंशन का। तो हमारी जो मोटापा है उसको हमें कम करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये अगर हम रिस्क फैक्टर्स कुछ इस तरीके से कम करेंगे, और योगा का बड़ा रोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो अगर हमें सुबह योगा की प्रैक्टिस लग जाए तो उससे बढ़िया बात कोई नहीं है अगर वो सप्लीमेंट करें। आई थिंक गवर्नमेंट के बारे में मैंने बता दिया। एक सबसे बड़ा है बाई डायरेक्शनल स्क्रीनिंग, कि जो हाइपरटेंशन के अंदर हाइपरटेंशन क्लिनिक में मरीज़ हैं उनकी डायबिटीज़ चेक जरूर हो, और जो डायबिटिक के अंदर पेशेंट आए हैं डायबिटिक क्लिनिक में, उनका हाइपरटेंशन चेकअप हो। और इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि इनके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं जाता है गवर्नमेंट का